Hi everyone, hello learners. So in this video we are going to start with the topic economic region of production. So those who are new to my channel, I have prepared all the videos related to the subject of microeconomics. You can find all of them in a sequential manner on the channel. Right. So here we have started with the theory of production. Right. In the previous video, we have done everything about the short run production function, long run production function. We have also understood the concept of isoquants. So moving further, today we are going to understand the concept of economic region of production. Now listen to this carefully. Remember in indifference curves, let me just show you. See, and the indifference curves, like these are the how the indifference map of a consumer looks like. So we know what is an indifference map. When more than one indifference curves are shown on a graph, it is called an indifference map. So now a consumer can be at any point on the indifference curve, right? Consumer indifference curve के किसी भी point पे हो सकता है, वो कोई भी combination x और y कोई भी combination ले सकता है. That was the theory of indifference curve, but it is not the case of isoquants. Isoquants बिल्कुल same indifference curve की तरह होते हैं. This is an isoquant map, right? Units of labor and units of capital हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. लेकिन isoquant का मतलब ये नहीं है that producer can produce any combination, the producer can use any combination of labor and capital. ऐसा नहीं है. Why? Because एक isoquant पे कुछ ऐसे points होंगे, there will be some combinations on a one isoquant where it is not feasible for the producer to produce. उन combinations पे producer के लिए produce करना profitable नहीं होगा, because the productivity of at least one factor, either capital or labor, is going to be negative. We have to identify those regions. तो कोई भी प्रोड्यूसर उन पॉइंट्स पे प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. सो दिस इज़ एन आइसोक्वांट. इस आइसोक्वांट पे कुछ ऐसे रीजन्स होंगे, लाइक और देयर विल बी सम कॉम्बिनेशंस ऑन दिस आइसोक्वांट वेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईदर लेबर और कैपिटल इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव. तो इसका मतलब प्रोड्यूसर उस कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा. दैट कॉम्बिनेशन वुड बी नॉन इकोनॉमिक फॉर द प्रोड्यूसर. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कॉम्बिनेशन so that the producer will not produce at within those regions. That is called this is the concept of economic region of production. Let's understand this now. It represents that area where it is technically feasible to substitute one input for another. Economic region वो area है जहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए टेक्निकली पॉसिबल है या हम कहें प्रॉफिटेबल है कि वो एक इनपुट को दूसरे इनपुट से सब्सटीट्यूट कर सकता है. एनी प्रोडक्शन टेक्निक आउटसाइड दिस रीजन, इस रीजन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो लेगा तो वो इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि किसी ना किसी इनपुट की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो here on x axis we have labor and on y axis we have capital, और ये है एक आइसोक्वांट मैप. ठीक है. अब मुझे इस आइसोक्वांट मैप में ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं जहाँ पे ईदर लेबर और कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो. हाउ डू वी डू दैट? वी विल ओनली फर्स्ट वी विल टेक ओनली Q1. अभी हम सिर्फ Q1 को लेके चलते हैं. वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट. हम Q1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस से पैरेलल है. सो हेयर यू कैन सी द ब्लैक लाइन विद द डॉट. ये टेंजेंट Q1 को टच कर रही है इस पॉइंट को. ये जो पॉइंट है ब्लैक कलर का, ये टेंजेंट Q1 को इस पॉइंट पे टच कर रही है. अब ये टेंजेंट क्या बता रही है? व्हाट इज़ दिस टेंजेंट टेलिंग मी? ये बता रही है कि इस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़ीरो हो चुकी है. हाउ डू आई नो? सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल. लेट मी शो यू. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल, चेंज इन आउटपुट
ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। रिमेंबर, ये हमने शॉर्ट रन में पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमें याद है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। अब हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। अब इस पॉइंट पे देखिए, चेंज इन कैपिटल तो हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन है तो कैपिटल तो चेंज हो रहा है, लेकिन आउटपुट कांस्टेंट है, आउटपुट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। रिमेंबर, ये एक आइसो क्वांट है, आइसो क्वांट में आउटपुट कांस्टेंट रहता है, आउटपुट चेंज नहीं होता है, राइट। सो लेट जस्ट रिमूव दिस अगेन। अब देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रही है, यानी कि ये यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 है, बिकॉज कैपिटल के चेंज होने पर भी आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा है, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज 0। इस पॉइंट के ओवर एंड अबव अगर हम जाएंगे तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल गो नेगेटिव। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। याद कीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जब हम ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे हम आउटपुट दिखाते थे, यहाँ पे हम लेबर दिखाते थे, राइट। और याद कीजिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे। इनिशियल तो MP इंक्रीजेज, बट देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, इट बिकम्स 0 एंड देन इट गोज नेगेटिव। तो इसका मतलब जैसे जैसे लेबर के यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, इट विल कीप ऑन फॉलिंग, वो 0 हो जाएगी और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमने कैपिटल के लिए लगाया है। इस पॉइंट पे कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई है, और अगर फर्दर मैं कैपिटल के यूनिट्स इंक्रीज करूँगी तो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो एट दिस पॉइंट नाउ आई नो दैट एट दिस पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज़ नेगेटिव, और इसके बियॉन्ड इस यहाँ पे प्रोडक्टिविटी 0 है और इसके बियॉन्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स प्रोड्यूसर इस कॉम्बिनेशन पे प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा। Clear? This is how we identify the first point. Let us see the second point. Similarly, just like we have drawn a tangent parallel to y-axis, we will draw a tangent parallel to x-axis. और similarly यहाँ पे marginal productivity of labor 0 हो जाए, because as we can see, लेबर के यूनिट्स तो चेंज हो रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेबर इज चेंजिंग बट द आउटपुट इज नॉट चेंजिंग। MPL का फॉर्मूला हमने पढ़ा है शॉर्ट रन में, वी हैव डन द फॉर्मूला, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, लेबर की वजह से, ये फॉर्मूला होता है। एंड हेयर आई कैन सी लेबर तो चेंज हो रही है लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा। रिमेंबर, ये आइसो क्वांट है, आइसो क्वांट में आउटपुट कांस्टेंट रहता है, so output is not changing। at this point marginal productivity of labor is 0, so इसका मतलब इसके beyond marginal productivity of labor क्या हो जाएगी, करेक्ट, नेगेटिव हो जाएगी। so now the producer knows कि इस पॉइंट से आगे और इस पॉइंट से आगे प्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है और यहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है। So producer will only like to produce within these 2 points. Clear? This is called economic region of production. Similarly, ऐसे ही same points हम बाकी iso quants पे भी find out कर सकते हैं। How we are going to do that? Similarly, we are going to draw the tangents. As you can see, तो नाउ द प्रोड्यूसर नोज इस रीजन पे प्रोड्यूस नहीं करना है और इस रीजन पे प्रोड्यूस नहीं करना है, बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो नाउ व्हाट डू वी डू, आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स, वी विल जॉइन दिस पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज जॉइनिंग द अपर पॉइंट्स, इसे हम बोलते हैं अपर रिज लाइन, एंड दिस इज जॉइनिंग द लोअर पॉइंट्स, इसे हम बोलते हैं लोअर रिज लाइन। रिज का मतलब होता है एज, इसके आगे नहीं जाना है। सो अपर रिज लाइन कह रही है कि इसके ऊपर के कॉम्बिनेशंस नहीं लेने हैं, वी डोंट हैव टू टेक द कॉम्बिनेशंस। लोअर रिज लाइन इज सेइंग वी डोंट हैव टू टेक द कॉम्बिनेशंस बिलो दिस। विद इन दिस रीजन द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस, इसे कहते हैं इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइन्स। क्लियर?
So I hope you all have understood this point. If you have not understood, please rewatch the video and tell me how do you like the video in the comment section. Thank you so much everyone.